اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حلیمہ سعدیہ اور عیسائیوں کا، جنہوں نے حلیمہ سعدیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا۔ حلیمہ سعدیہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے سے انکار کر دیا اور کیا کہا۔ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع اول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے کے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنوں شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شیر خور بچے کو دیہات میں بیچ دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نامولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئیں تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و کرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں مجسم ہو گیا۔ لہٰذا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر کے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ مگر جہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا فیاض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے
अल्लाह की तरफ से हज़रत हलीमा मुसलसल अज़ाब और खैर बरकत का मुशाहदा करती रहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और इनके शौहर हारिस के गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला सिफात खूबियाँ की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही संजीदा मजाज और गौर फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर हज़रत हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल इन पर साया करता रहता है, रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते हैं। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए आए, हज़रत हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक कर दिया है। हज़रत हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वह अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत खड़े थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लटा कर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे इसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर हज़रत हलीमा बहुत घबरा गईं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 वर्ष हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आई और आपकी वालदा हज़रत आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हज़रत उम्मे ऐमन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माइत की बांदी थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद के साय से मरहूमी का शऊर भी ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना भी वफ़ात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हज़रत अब्दुल्ला अक्सर आपको अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मकाम बुलंद है, ये सैयदो सलार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 वर्ष की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर ज़ोरों कतार रोने लगे, क्योंकि इस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहद सहारा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मौत के वक्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थीं। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से तल्लक जोड़ा। एक यतीम की ज़िंदगी तंगी और परेशानियों से बरी होती है। लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तार मुश्किलात से गुजरता है और इसके अंदर एहसास, ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहतें पैदा होती हैं। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहम दिल हो जाता है। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह के बेशुमार खसूसियत और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल अब हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जब के बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चाचा हज़रत अबू तालिब का हाथ बटाते।
अगरचे हजरत अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया था और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवाशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। हजरत अबू तालिब एक ताजर थे, लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप इन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्के शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक इनका काफिला ठहरा। रवायत है कि जिस जगह इनके कारवां ने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नामी एक राहब रहता था। बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है इसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। उसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए हैं। बहीरा एक आलम और दानश्वर रहब था। वो समझ गया कि ये वही माबद है जिसकी बिशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो हजरत अबू तालिब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करे। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम ना ले जाओ क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। लिहाजा हजरत अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। हजरत अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौखियाँ ना थी बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर फिक्र किया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस माशरे और समाज में परवरिश हुई और जहाँ आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा इसमें जिनाकारी, फैश, शराबनोशी, सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयाँ जोरों पर थी। ऐसे माशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना, किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। इस जमाने में मिट्टी के घर हुआ करते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और इनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर इन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से हैं। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर इन यहूदियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मेहरे नबुव्वत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया इनकी ये बातें सुनकर बहुत घबरा गई। तब ही इन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा, इस बच्चे का बाप कहाँ है? हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम उससे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहां से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाक़या के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ए हलीमा, इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो इन ईसाइयों ने कहा कि ए हलीमा, ये लड़का हमें दे दो, हम उसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे इन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।